49, and that of 17 term is 289, then the sum of its n terms will be, what will be the sum of n terms? So whenever it is being asked the sum of n terms, you need not to write the value of n, बस n की वैल्यू हम लोग को n ही लिखनी होती है, बाकी सब कुछ आपको लिखना होगा n by 2 bracket 2a plus n minus 1 into d. So you need to calculate the d and a for this ap. d and a को कैलकुलेट कीजिए इस ap के लिए इन दो टर्म्स की मदद से कि 7 टर्म्स का सम अगर 49 दे रखा है और 17 टर्म्स का 289 दे रखा है, फिर उसकी सम ऑफ n टर्म्स आप कैलकुलेट कीजिए। ट्राई कीजिए एक बार a और d की वैल्यू कैलकुलेट करने की, एंड देन आई एम गोइंग टू हेल्प यू। सर यस, हम nth टर्म कैसे ढूंढेंगे? nth टर्म आपको नहीं लिखानी, चलिए मैं हेल्प करता हूँ कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ओके, so it is being given to you that is the sum of, it is being given to you that एक मिनट बेटा, ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9 एंड यू नीड टू सॉल्व दिस वन। सो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम लोग को गिवन है कि द सम ऑफ एसएन टर्म्स, कि 7 टर्म्स का सम हम लोग को गिवन है, एंड दैट इज ओके, so sum of 9 term it is being given to you, that is sum of 7 term it is being given to you, that is 49, and that of sum of 17 term it is being given to you, that is 289. It is being given to you in the question. Okay, so what you need to do here is you need to find out the sum of Sn terms. You need to find out the sum of Sn terms. So you know that if the 49 is given to you, then you can write the equation 7, that S49 is equals to n by 2 is 7 by 2, means you have to use this formula, Sn is equals to n by 2 bracket 2a plus n minus 1 into b. So here you know that the sum of n terms is 49, so you have to write here 49. Then n by 2 means the n is 7, so you have to write here 7 by 2 bracket 2a. You don't know the value of a, so write here a plus n minus 1 means 7 minus 1 into d. D you need to find out, so you don't know the value of d. So you can cut it, you will get 7 ones and 7 sevens are 49, and then this 2 will go to that side and get multiplied there. So you will find here that 7 2s are 14 is equals to 2a plus 60.
Okay, now taking the 2 as common, you can write here a plus 3d into 2 is equals to 14. You can cut this one and you will get here that a plus 3d is equals to 7. So you can get here a plus 3d is equals to 7. This is your first equation. Similarly, you have to do with this one that bring the second equation. So you know that the sum of 17 terms. So 17 means S17 is being given to you. So here you have to write here 289 is equals to 17 by 2 bracket 2a. If still you don't know the value of a, plus n minus 1 means 17 minus 1 into d. Now this again you cut it, you will get 17 17 17 is 289, and this 2 okay, here let it this 2 be here, and you have 2 plus 16d. 16d is equals to 17. Now you can bring the 2 common from these two terms. You can 2 plus a plus 16 is equals to 17. Now this 2 and 2 will get cancelled out. You will find that a plus 16d is equals to 17. You find here. Okay, this is your second equation. A plus 16d is equals to 17. Now you need to find out the value of a and d. So subtracting the second equation, subtracting the first equation from second, subtracting first from second, you will find that a plus 16d minus a plus 3d is equals to 17 minus 7. Okay, now you can put the value here and you will find that a plus 16d minus a minus 3d is equals to 10. Now this a and a will get cancelled out. You will find here 13d. 13d is equals to is it 16? Okay, 13d is equals to 10. Then d is equals to, you will find here, then d is equals to 10 upon 13. This is your first equation for d. Means d you need to put here is 10 upon 13. Okay, is that okay? Yes, sir. 10 upon 13. Okay, seventh term. Okay, let me check because d is coming 10 upon 13. Let me check. मतलब कुछ अजीब सा आ रहा है तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं की है. I got 24. Do You you got got? d is equals to 24 you got. Yeah. So let me check 7 upon 24 and here it is 2a plus 6d and this 7 cut it and you will get 7 1 the 7 to the 7 to the 14. And this is 2a plus 6d. Then 2 will get cancelled out here and you will find here a plus 3d is equals to 14 and d. This is the first equation. Yes, exactly same. And here 17. So you will find here 2a plus 16d is equals to, then you will find here a plus 16d. Oh, it's a mistake, silly mistake that I have. When I took the 2 as common from here, I have not reduced this value. So if when I take the 2 as common, this will also become the 8. This will also become 8. So instead of 16, it will be 8. 8. Okay, so you will find here that is 8d. A plus 8d is equals to 17. Now you put the value here 8d. And this is minus of a and minus of 8. So you will find here 8 minus 3, you will get here 5. 5d. 5d is equals to 10. And you will find here d is equals to 2. 10 by 2, you will get d is equals to 2. You get the value as d is equals to 2. Common difference is 2. Now, moving to the next. Moving to the next, you need to find out the value of a also. So you know that d you have find that it is 2 and you know the equation that a plus 3d is equals to 7. Now putting the value here a plus 3 into d, consider d as 2. So right here 2 is 7 and then it will be 6. 6 when goes to that side you will find here 7 is minus 6, a is equals to 1. Now putting this value in SN terms, because you need to find out the value of SN terms, and S is equals to n by 2 bracket
2a plus n minus 1 into d। तो जब हम लोग Sn टर्म या कुछ भी n an टर्म निकाल रहे होते हैं तो हम लोग को a और d की वैल्यू को बस उसमें पुट कर देना होता है, n की वैल्यू को नहीं पुट करते। So you can write here n by 2 will remain same 2 into a is 1, so write here 1 plus n minus 1, right, n minus 1 into 2, then you can put here n by 2 bracket 2 plus 2n minus 2, then this 2 and 2 will get cancelled out. You will find here n by 2 into 2n, and this n will get cancelled out. You will find n into n, you will find n square. Got it? So the sum of n terms of this AP will be n square। और आपको पता भी है, देखिए आप 7 को रखते हैं यहाँ पे, तो n स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, दिस मीन्स 49 आया। इस तरह से आपने 17 रखा है यहाँ पर, तो 17 मतलब n स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 289। तो आप n की वैल्यू जो भी रखेंगे इस AP के हिसाब से n स्क्वायर उसका सम होगा। अगर आपके 5 टर्म्स का सम निकालना होगा तो आप n स्क्वायर रखिए, उसको 5 का स्क्वायर कीजिए इज इक्वल टू दैट विल बी 25। गॉट इट? इस तरह से हमारे पास ऐसे टर्म्स की वैल्यूज बदल जाएंगी। गॉट इट? Got it, sir. ओके, सो डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। let me help you. So try to do the question number 11. Question number 11. If the sum of first n terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term? फर्स्ट टर्म आप बताना है आपको, दैट इज S1 हो जाएगा। It's third term, 10 terms and n terms. Are you trying? Yes, sir. Okay. The first term is 3. The first term is 3. 3. Okay. The sum of first two. So let's check. The sum of first two numbers is 4. Okay. So let's check.
चलिए हम लोग इसे और करते हैं। आपको गिवन है कि एस एन ड्रम आपको गिवन है दैट एस एन ड्रम इज बीइंग गिवन टू यू एंड द वैल्यू फॉर द एस एन ड्रम इज एस एन आपको गिवन है एंड दैट इज 4n माइनस एन स्क्वायर, यानी कि आप n की जो भी वैल्यू रखेंगे आपको उतनी टर्म का सम मिल जाएगा इस इक्वेशन में, इस एपी के लिए। सो व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स? सो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स आपको बताना है। आपको सम ऑफ फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट टर्म का सम कितना होगा, फर्स्ट ही टर्म होगा किसी एपी का। तो फर्स्ट टर्म ये भी आपको बताना है, व्हाट इज फर्स्ट टर्म, व्हाट इज फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। और फिर हम लोग को एक्चुअल में सेकंड टर्म बतानी है कि सेकंड टर्म क्या है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, टेंथ टर्म एंड ए एन टर्म, यानी कि ए एन टर्म, यानी ए एन टर्म आपको बतानी है, एन टर्म्स। ठीक है, एस एन टर्म नहीं, ए एन टर्म्स बतानी है आपको। ओके, तो ये बहुत सारी चीजें हम लोग को इसको बतानी है। चलो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, तो लेट्स मूव। So let's move. I think I got all. Hmm? I think I got all except 10th term. You got all except the tenth. Okay. So let's solve this question. Okay. So here we have S. So first of all, we will going to calculate the value of S1, the first term. So putting that value S1 is also equals to the first term, क्योंकि किसी भी AP में अगर मैं बोल रहा हूँ टू टर्म्स का सम, जैसे मेरे पास AP है 2 then 5 then 8 and then 11, तो इसमें sum of first term is first term ही होगी ना। So that is first term and that we put the value here 4 into 1 minus 1 square. So you will get here 4 minus 1, you will get 3. The first term is actually 3 for this AP. Okay. Now moving to the next is it is being asked, आपसे पूछा गया है, एक मिनट। ओके, चलिए उसके बाद आपसे पूछा गया है नेक्स्ट कि सेकंड टर्म का सम कितना है, यानी टू टर्म का सम कितना होगा। तो सिंपल S2 is equals to इस फॉर्मूले में 2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर। That is 4 bracket 2 minus 2 square. So you will get here 8 minus 4, that is 4. Sum of two term is 4. दो टर्म का सम 4 है। तो किसी एपी की अगर दो टर्म का सम 4 है और उसकी फर्स्ट टर्म ए 3 है, तो वो सेकंड टर्म कितनी होगी, सेकंड टर्म क्या होगी इसकी। तो हम बोलेंगे सेकंड टर्म कितना होगा किसी, मैंने फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक एपी लिखता हूँ दैट इज 2 5 एंड देन 8। इसकी पहली टर्म 2 है और दूसरी टर्म का पहली दो टर्म का सम हमारे पास 7 है, यानी पहली दो टर्म का सम हमारे पास 7 है। तो उसकी दूसरी टर्म कितनी होगी, तो दैट इज सम ऑफ सेकंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म का माइनस कर दीजिए, विल गेट द सेकंड टर्म। तो जो भी टर्म होती है, अगर आपको सपोज कीजिए इसकी किसी भी एपी की फिफ्थ टर्म पता करनी है, तो सम ऑफ 5 टर्म माइनस 4 टर्म, क्या आप 5 टर्म में से 4 टर्म के सम को माइनस कर दीजिए तो आपको फिफ्थ टर्म मिल जाएगी। तो इसी तरह से आपको अगर A2 निकालना है तो सम ऑफ टू टर्म में से आप सम ऑफ वन टर्म माइनस कर दीजिए। सम ऑफ टू टर्म्स कितना है हमारे पास, दैट इज वी हैव कैलकुलेटेड, दैट इज 4। सम ऑफ वन टर्म कितना है हमारे पास, दैट इज 3 एंड दैट इज A2 वी विल गेट 1। A2 यानी हमारे पास, और जाहिर सी बात है अगर हमारे पास किसी एपी का फर्स्ट टर्म 3 है और दूसरा टर्म हमारे पास 1 होगा, तभी इन दो टर्म का सम 4 आएगा। ठीक है, तो अब आपको पता भी चल गया है कि अगर आपके पास नाउ अब आपसे पूछा जाए कि इसकी थर्ड टर्म कितनी होगी। थर्ड टर्म के लिए आपको डी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी एपी का अगर फर्स्ट टर्म आपको गिवन है -2. तो यू विल गेट हियर डी इज इक्वल टू -2। तो डी -2 है तो थर्ड टर्म आपको पता करना है किसी भी एपी का, तो a प्लस 2d होता है थर्ड टर्म। ये थर्ड टर्म जो होता है वो a प्लस 2d होता है। तो a की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, दैट इज 3 प्लस 2 इंटू -2, यू विल गेट हियर a3 is equals to 3 minus 4, a3 is equals to minus of 1। तो थर्ड टर्म आपके पास -1 आ जाएगा। इसी तरह से टेंथ टर्म a प्लस 10d, a प्लस 9d होता है टेंथ टर्म। सो a आपको पता है 3 प्लस 9 इंटू -2, यू विल गेट हियर 3 minus 18, विल गेट -15। और इसी तरह से आपसे पूछा गया है आगे कि
उसकी ए एन टर्म क्या होगी। तो ए एन टर्म के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, सिंपली ए एन टर्म के लिए एक सिंपल सा वो होता है कि आपको सिर्फ एन की वैल्यू नहीं रखनी होती है, बाकी सब चीजों की वैल्यू आपको रखनी होती है। तो आपको पता है ए एन टर्म किसी भी एपी का होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डोंट पुट द वैल्यू ऑफ एन, बस बाकी ए और डी की वैल्यू पुट कीजिए। तो ए एन टर्म फॉर दिस एपी, सो ए एन टर्म फॉर दिस एपी वुड बी ए प्लस, एक ए आपको कितना गिवन है, दैट इज 3 प्लस n-1 एंड डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, d is -2, so you can write here that is 3 plus 2, this when you multiply you will get plus 2 and minus 2n, so you will get here 5 minus 2n is the an term for this AP. समझ आया? Yes, sir. Got it? Yep. Please copy all the this question. Done? Yes, sir. Okay, let's move further. So we have done this question and here we find that कि यहाँ पर हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया है सारे पार्ट्स को। अब चलिए मुझे बताइए कि what is the sum of first 40 integers divisible by 6? Question number 12. Do it by your own. So I found it. Yes, what's the answer? 4,920. Tanishka, is your answer is same? And your Yes, I got the same answer.
Okay. And your Siddiq? Siddiq तो ये नहीं. Ahmed, your answer? Okay. So let's do the question number 15. The same is for this one and same is for this one. Okay, so do question number 15. 15 looks tough. Done? Yes, sir. What's your answer? So it's 27,750. Same, sir. And your? Same. Okay. So Sayyid, your answer? Sayyid Ahmed, are you listening? Is I'm audible to you? Okay. So you are saying same answer. Okay. So let's move to the next question. That is 16. So can you explain? Yes, why not? Question number 16. It is being given that the sum of 700 prize is to be distributed among the students for their for their performance, and each prize is 20 rupees less. Okay, 20 rupees less than the preceding price.
मीन्स अगर हमारे पास कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो भी कोई प्राइस है हम लोग को नहीं पता। सपोज कीजिए अगर फर्स्ट प्राइस 400 रुपीज का है तो सेकंड प्राइस 380 का होगा, उससे अगला वाला जो भी जितने का भी होगा दैट विल बी 360 एंड सो ऑन। और 7 हम लोग को प्राइस टोटल कितने स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द प्राइस 700 रुपीज हमारे पास टोटल, यानी सम ऑफ ऑल प्राइसेस शुड बी 700 एंड और प्राइस और हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हमारे पास वो भी 7 ही है। तो पहला प्राइस कितने का होगा, तो ये पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, हर एक प्राइस कितने का होगा। तो हम लोग मान लेते हैं हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि पहला प्राइस हमारा जो है वो ₹100 का है, देन उसके बाद x+20 का होगा, उसके बाद x+40 एंड देन x+60 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे हमारे पास सारे प्राइसेस होंगे। ठीक, तो अगर मैं कंसिडर कर लेता हूँ ये, तो सम ऑफ ऑल प्राइसेस कितना होगा, सम ऑफ ऑल प्राइसेस इज सम ऑफ, तो ये लीस्ट प्राइस को मैं कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि सबसे फर्स्ट प्राइस तो हमारा जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा अमाउंट का होगा। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि आप लोग को ध्यान मत से मतलब निकलना जाए कि फर्स्ट प्राइस का मतलब होगा सबसे ज्यादा अमाउंट का जो प्राइस होगा उसको हम लोग फर्स्ट प्राइस बोलेंगे। तो मैं लीस्ट प्राइस यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ, दैट इज x रुपीज का है, यानी फर्स्ट टर्म मैं उसकी a कंसिडर कर लेता हूँ। सो इसको आप अगर कंफ्यूजन ना हो तो आप इसको a से भी मान सकते हैं, मर्जी है आपकी। ठीक है, और अगर आप ऐसे करते जाएंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी लास्ट टर्म भी इसमें आ जाएगी, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आपको जरूरत नहीं है इतने सारे टर्म्स को a+n-1 इंटू डी करने की। अगर x है तो उसके बाद 20, ये सेकंड टर्म हो गई, थर्ड क्योंकि साथ ही टर्म में तो आप निकाल सकते हैं आसानी से लास्ट टर्म। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, फिर 2a+l ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे आप। अदरवाइज आपको फिर अगर नहीं निकालना चाह रहे हैं लास्ट टर्म तो आपको फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ऐसे n/2 ब्रैकेट 2a+n-1 इंटू डी। तो आपका जैसे दिल चाहे आपको ऐसा कर लीजिए। तो कोशिश करते हैं, चलो निकाल ही लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो हमें पता है कि 7 टर्म का सम is equals to 7/2 bracket 2 into a is x here plus n is 7 minus 1 into d is 20, कॉमन डिफरेंस 20 का है। ओके, सो यहाँ पर 700 आपको गिवन है, is equals to 7/2 bracket 2x, आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है सिंपल। So that would be 6, this would be 120. Okay, now this 7 and 7 will get cancelled out, you will get 100 here, and this 2 will goes to that side, you will get here 200 is equals to 2x plus 120. Now this will goes to that side, you will find here that 2x is equals to 100 minus, you will get 80 and 80 divided by 2 you will get 40. So x is equals to 40, and the first price is of 40 rupees, second price is of 60, then 80, then 100, then 120, then 140, then 160, 3, and then 180. When you add all these, you will get the sum of 700. You can check here that ये दो का मिलके 100 हो गया, ये दो मिलकर के 200 हो चुके हैं। ठीक है, और 40, 60, 80, 100, 120, 40, 160। ओके, फिर ये 300 हो चुका है अभी तक हमारे पास, और ये दोनों मिलके हमारे पास, मैंने ज़्यादा टर्म्स लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 180 ज़्यादा लिख दिया है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। सो ये दोनों मिलके हमारे पास 300 हो चुका है, और ये 100, तो 100 प्लस 100 200 एंड 300 300 400 एंड 400 एंड 300 700। समझ आया? Yes, sir. इज देयर एनी डाउट? No. No, अगर sir. आप लास्ट टर्म कैलकुलेट कर लेते तो अब आप डायरेक्टली कर सकते थे, a+80 यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर आप आगे जाइए, 7th टर्म आप, फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये, फोर्थ, देन फिफ्थ टर्म विल बी x+80, देन x+100, सिक्स टर्म एंड x+120। सो ये आप यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर देते इस फॉर्मूले में, तो आपको डायरेक्टली मिल जाता आंसर कि आपको मिलता n/2 ब्रैकेट x plus 120 is equals to 700
सो यहाँ पे 2x प्लस 120 जैसे यहाँ पे आया था 2x प्लस 120, फिर आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट। सो आपका जैसा दिल चाहे आप ऐसा कर लीजिए। ओके Alright, sir. चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17 कीजिए। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इसलिए मेरे को ये सभी कराने हैं। Sir, 78. 78. Yeah. There are 3 sections. How many trees are planted by the student? 78. Yeah, I got 78. Okay, Tanishka, your answer. And Sayyid, तो पता ही नहीं आज कहाँ पर है। So I'm doing it. Okay. Okay, 3 sections. Okay, so it's 234. Yep, 234. 234. Okay. So अभी हम लोग सही दोनों को समझ में आया? Yes, sir. Okay, let's move to the next part is 18. ये कुछ इस तरह से स्पाइरल है। एक मिनट। ये कुछ इस तरह से स्पाइरल है, आपको अपनी बुक में भी दिख जाएगा अगर आप देखें तो। सो पहले वाले का जो रेडियस आर है, पहले सेमिसर्कल का जो रेडियस है, ओके, वो दूसरे वाले सेमी सर्कल का एक्चुअल में, ये पहले वाले सर्कल का जो डायमीटर है सेमी सर्कल का, वो दूसरे वाले का रेडियस है, फिर दूसरे वाले का रेडियस दूसरे, इस तरह से मतलब सो ऑन ये स्पाइरल कर रहा है। सो क्वेश्चन में गिवन है आपको कितने स्पाइरल्स, चलिए बताइए। So please explain.
चलिए, क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास एक स्पाइरल है मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल से बना हुआ है with centers alternative A and B starting with center A the radii is 0.5 उसके बाद ये बढ़ते जा रहे हैं, मतलब हमारे पास जो सेमी सर्कल्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, पहले हमारे पास पहले वाले का जो रेडियस है दैट इज 0.5, उसके बाद ये ऐसे आएगा तो उसका रेडियस हो जाएगा दैट वुड बी दिस वन दैट इज 1 सेंटीमीटर। फिर इस वाले का रेडियस होगा हमारे पास दैट वुड बी 1.5 सेंटीमीटर, मतलब इस तरह से रेडियस हमेशा 0.5 बढ़ता जा रहा है। एवरी टाइम द रेडियस इज इंक्रीजिंग बाय 0.5 से इंक्रीज कर रहा है। तो सेमी सर्कल का आप लोग को बताना है, क्वेश्चन में गिवन है कि आपको बताना है कि क्या शो व्हाट इज द टोटल लेंथ, यानी कि आपको एक तो में सर्कमफ्रेंस निकालनी है इतने सारे। अगर अगर 13 कॉन्जिक्यूटिव इस तरह के स्पाइरल्स बन रहे हैं तो 13 कॉन्जिक्यूटिव स्पाइरल्स बन रहे हैं, सो आपको पता है कि आपको ये निकालना है तो आप लिख दीजिए यहाँ पर कि आपको एक्चुअली में पाई आर 2 पाई आर होता है ना, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2 दिस विल बी दी हाफ सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस हो जाएगी। सो आपको एक्चुअली में पाई आर 1 प्लस पाई आर 2 प्लस पाई आर 3 एंड सो ऑन करते हुए पाई आर 13 तक जाना है, आपको ऐड करना है। ठीक है, और यहाँ पर आप इफ यू टेक दी पाई एज कॉमन सम ऑफ 13 टर्म्स आपको एक्चुअली में निकालना है। So you will get R1 plus R2 plus R3 and so on करते हुए आपको 13 तक जाना है। तो पाई आप कॉमन ले लीजिए। ओके, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये 0.5 है, देन 1.1 है, देन 1.5 है एंड सो ऑन R13 तक जाना है। आप इसको 6.5 भी कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ये 13 तक 6.5 हो जाएगा। ओके, नाउ अब पाई को तो आप पाई ही रहने दीजिए। ओके, इसमें आप लगाइए एपी। आपको ए गिवन है, मतलब एस एम 13 टर्म्स का आपका लिखाना है, तो फॉर्मूला देगा हमारे पास एस एन एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला लगाइए यहाँ पर। ए आपको एन बाई टू इज 13/2, ठीक है, ब्रैकेट 2 इंटू ए इज 0.5, फर्स्ट हमारी 0.5 है, प्लस एन माइनस 1 यानी 13 माइनस 1 इंटू डी इज 0.5। So you can calculate here that is pi bracket 13 by pi bracket that is 13 by 2 bracket, ये मल्टीप्लाई करेंगे आपको तो आपको मिल जाएगा 1 2a, ओके 1 एंड दिस वुड बी 6, सॉरी मतलब 12 हो जाएगा, 12 के इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, so you will get 6, so you can write here 6, so you can write here 22/7 into that 13 is in multiplication 13/2 into 7. Now this 7 and 7 will get cancelled out. This 2 and this will get 11. So 13 you will get 1 4 43. 143 centimeter. That will be the length of 13 spiral. Got it? Got it, sir. Anishka, you also? Yes, sir. Okay, let's move further. So, do question number 19. Okay, this is harder than the previous one. This is? Harder than the previous one. No. Try it.
आर यू डूइंग? हो रहा है बेटा? सर मदद चाहिए थोड़ी। ओके, सो देखो यहाँ पर हमारे पास 200 लॉग्स है टोटल, और उनको इस तरह से रखा गया है कि 20 लॉग्स नीचे वाले रो में है, उसके बाद अगले वाले में 19 होंगे, मतलब एक एक कम करते हुए जा रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पर 18 होंगे, उससे अगले वाले में 17 होंगे, इस तरह से 16 एंड सो ऑन रखते जाना। हाउ मेनी रोज, आप कितने रोज में ऐसे 200 लॉग्स को रख सकते हैं? और टॉप वाला जो लॉग लॉग होगा, मतलब सबसे हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो, टॉप रो होगी हमारे पास सबसे ऊपर वाले में, उसमें कितने लॉग्स होंगे, तो ये हम लोग को बताना है। तो चलिए इसको करते हैं हम लोग। तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारा एपी कुछ इस तरह से है, इसमें पहले में 20 है, उसके बाद 19 है, फिर 18 है, फिर 17 है एंड सो ऑन। हमें नहीं पता कहाँ तक है। हम लोग को n की वैल्यू निकालनी है कि कितनी टर्म का सम 200 हो जाएगा, कितनी टर्म का सम 200 हो जाएगा। सो लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n। a is 20 here, d is -1 एंड n आपको निकालना है, और here we have d a and ओके, n की वैल्यू हमारे पास हमको निकालना है। ओके, d हमारे पास आ गया -1। ओके, then Sn is equals to n by 2 bracket 2a plus n minus 1 into d। ओके, सो आपको n की वैल्यू पहले कैलकुलेट करनी है। तो आपको पता है कि सारे ब्लॉग लॉग जितने भी होंगे आपके पास 200 है टोटल, तो आप 200 लिख दीजिए यहाँ पर। n आपको निकालना है डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू 20, ठीक है, प्लस 19 सॉरी n माइनस 1 इंटू -1, आपका d आ जाएगा। सो दिस विल बिकम n बाई 2 ब्रैकेट 40 प्लस, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट माइनस ऑफ n, और ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट प्लस ऑफ 1। तो मैं पहले प्लस ऑफ 1 लिख देता हूँ, देन माइनस ऑफ n लिख देता हूँ। ओके, एंड दैट इज 200। नाउ यू पुट द वैल्यू हियर। ओके, when you put the value here, you will find that this one will be 400 400 is equals to n ये 2 मैंने इस तरफ भेज दिया है। ओके, एंड दिस विल बी 41 minus n। now when you multiply this n with this one and this one, you will get here n square 400 is equals to 41 n minus n square। ओके, 41 माइनस एन स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। तो आप n की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, सबको आप इस तरफ लेके आ जाइए। सबको आप इस तरफ लेके आ जाएंगे तो यू विल फाइंड हियर n स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का 41 n हो जाएगा, और प्लस का 400 तो है ही पहले से। सो ये आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा। ओके, यू विल फाइंड हियर दैट n स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 41 n प्लस ऑफ 400 इज इक्वल्स टू 0। अब 400 के ऐसे फैक्टर जिनका सम करो तो 41 आए, तो दैट इज आपको मिलेगा 400 के फैक्टर कर लीजिए आप। 400 को मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, सो यू कैन राइट हियर 4 into 100, then you can write here 2 into 2, and here you can write 2 into 5 and 2 into 5। तो ये सारे 400 के फैक्टर्स हो चुके हैं। अब आपको इस तरह से अरेंज करना है कि इनकी प्रोडक्ट यानी दो नंबर आप इस तरह से निकालिए कि जिनका सम करें तो आप 41 आए। तो आपको मिल रहा है 5 और 5 मिलके 25 होता है, और 4 4 4 4 मतलब 16, तो 16 into 25 will gives you the 400, और इन दोनों का सम करेंगे तो यू विल गेट 41। तो यहाँ वैल्यू पुट करिए एक्स स्क्वायर माइनस 16x एंड माइनस 25x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर, अब आप x को कंसीडर करते हैं तो x n था ना, वो n, चलो n ही करते हैं उसको, मैंने x पे कैसा हो गया, दैट इज n। write down here n square, take the n as common, so n minus 16, then take the minus 25 as common, you will get x minus 16 is equals to 0। so you will get x minus 25, yeah, x minus, sorry, n minus 25 and n minus 16। so you will get two values of n is equals to 16 and n is equals to 25। अब ये वाली जो वैल्यू होगी ना, ये मोस्ट प्रोबेबली रिजेक्ट कर दी जाएगी, क्योंकि अगर आप n की वैल्यू निकालते हैं 25 रख करके, तो उसमें नंबर ऑफ लॉग्स जो आएंगे वो माइनस में चले जाएंगे, और माइनस में कभी लॉग हो नहीं सकते। हम लोग निकालते हैं कि लास्ट लॉग में कितने होंगे,
उसने पूछा भी है क्वेश्चन में कि लास्ट वाली रो में कितने, देखो तो 16 रोज है हमारे पास, तो हमारे पास 16 रोज में कितने लॉग्स होंगे, तो हम लोग उसको निकालते हैं यहाँ पे कि A16 is equals to A plus n minus 1 into D. So you have to write here the first term. फर्स्ट टर्म अगर आप यहाँ पे रखते हैं a, वो आपकी थी 20 प्लस n माइनस 16 माइनस 1, यानी किसी भी एपी का 16 टर्म क्या होगा, a प्लस 15d होगा, तो दैट इज 20 प्लस 15 इंटू माइनस 1 था d हमारा, दैट वुड बी d, और ये माइनस करेंगे इसमें से तो यू विल गेट माइनस ऑफ 15, so you will get here a is equals to 5, यानी आपकी जो 16th रो होगी उसमें सिर्फ 5 लॉग्स होंगे, ठीक है, 5 लॉग्स होंगे। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर हम लोग a को 25 कंसिडर कर लेते हैं तो a प्लस 24d हमारी होगी, यानी अगर हम लोग n को 25 कंसिडर कर लेते हैं तो उसमें कितने लॉग्स होंगे, सो a प्लस 24d 25th टर्म होगी इस एपी की, दैट इज 20 प्लस 24 इंटू माइनस 1, विल गेट 20 माइनस 24 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4, जो इसके लिए हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, मतलब n इज इक्वल्स टू 25 विल बी रिजेक्टेड, क्योंकि किसी भी एपी में किसी भी, मतलब यहाँ पे तो रियल लाइफ है ना, तो ये माइनस में हो नहीं सकते, किसी किसी में -4 लॉग्स नहीं हो सकते ना 25th रो में, तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, गॉट इट? Got it, sir. Yes, sir. ओके, तो ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा और 16 को मान के हम लोग कंसिडर करेंगे, तो कॉपी कर लीजिए एक बार इसको। Done, sir. डन, नेक्स्ट वन आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। Last question. यस, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। डू क्वेश्चन नंबर 20। ये एक पोटैटो रेस है जिसमें पोटैटो को उठा करके हमें बकेट में रखना होता है। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। उसके बाद अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट। उसके बाद हर एक पोटैटो 3-3 मीटर बाद रखा हुआ है। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। लाइन में कितने पोटैटोज हैं? 10 पोटैटोज हैं। तो एक बच्ची को कंप्यूटर स्टार्ट द बकेट एंड पिकिंग अप द नियरेस्ट पोटैटो, को उठाना शुरू करती है, उसके बाद फिर से उसको ड्रॉप करती है, फिर जाती है, फिर से ड्रॉप करती है इन द बकेट एंड बैक टू नेक्स्ट पोटैटो एंड देन बकेट टू द ड्रॉप इट एंड देन शी कंटिन्यूस अंटिल, जब तक वो पूरे के पूरे पोटैटोज यानी 10 पोटैटोज को बकेट में नहीं डाल देते। टोटल डिस्टेंस द कंप्यूटर हैज टू रन, कितना डिस्टेंस को ट्रैवल करना होगा बताइए। All right, sir. This one's easy. दिस इज कंफ्यूजिंग। No, this one's easy. इजी, ओके।
Done? So give us more time. Okay. So 370 meters. 70 meters. 370 meters. ओके, तो कैसे किया आप लोगों ने? तनिष्का, तुम्हारा भी यही आंसर आया? नो सर, कितना आंसर आया? सर मैंने पूरा नहीं किया। देखो, ये बकेट है, यहाँ से 5 मीटर का पहला डिस्टेंस है, उसके बाद सक्सेसिव में वो 3 मीटर को कवर करती है ना, उसके बाद वो सक्सेसिव में 3 मीटर को कवर करती है, तो 3 मीटर आया, उसके बाद फिर ये 3 मीटर को वापस से कवर करेगी, ओके, और फिर से 3 मीटर जाएगी, और ऐसे करते करते उसको 10 पोटैटोस तक जाना है ना। तो सबसे इस तरह के क्वेश्चंस को ना अगर समझना हो तो पहले आप उसका एक एपी बना लीजिए। तो पहले जब वो यहाँ से स्टार्ट करेगी, कहाँ से स्टार्ट करेगी? बकेट से स्टार्ट करेगी ना, तो बकेट से गई और बकेट पर वापस आई, कितना मीटर चली? 10। बोलो, 10 मीटर चली ना बेटा? यस सर। ओके, उसके बाद अगले स्टेप में वो फिर यहाँ से जाएगी 8, और मतलब 8 मीटर चलेगी और 8 मीटर वापस आएगी, तो अगला अगला हमारा नंबर क्या होगा? कितना डिस्टेंस चलेगी? 8, सॉरी 16 मीटर। उसके बाद कितना चलना है उसको? उसके बाद फिर से 6 मीटर और चलेगी, मतलब एक्स्ट्रा, तो 10 के बाद 16 मीटर चलेगी, फिर वापस से फिर से उसको चलना होगा यहाँ पर 21, यानी कि 11 मीटर, और 11 मीटर जाने का, 11 मीटर आने का, तो यानी 22 मीटर वो चलेगी, एंड इस तरह से वो चलेगी 10 टाइम्स, 10 बार, 1 2 3, इस तरह से वो 10 बार इसको उसको कवर करना है। सो ऑन, हम लोग एन को कंसीडर कर लेते हैं 10 पोटैटोज हैं, ओके, और ए हमारा इस एपी में 10 है, और डी हमारा इसमें 6 है, और फिर उसके बाद बस आपको बताना है सम ऑफ 10 टर्म्स, तो n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, पुट करिए, वैल्यू निकालिए, s10 इज इक्वल टू 10/2 ब्रैकेट 2 इंटू a, 10 प्लस n-1, n-1 is 10 minus 1 into d is 6. Okay, then you can write here 5, 20 plus 9, and 9 6 are 54. Sorry, d is 6. Hey, 9 6 are 54. Okay, so you can write here 5, and this will be 74. Okay. Okay, got it? Yes, sir. Yes, sir. 74, 35, 37. तो 370 meters को चलना होगा. Got it? Did I get यस correct? सर। Yeah. तुम्हारा आंसर यही था बेटा? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, ओके? Thank you, sir. हेलो हामना, हेलो मुरादुल्लाह, हेलो सर। कैसे हो बेटा? सब बढ़िया है। बढ़िया है, ओके, चलिए। आज मेराज नहीं आया? चलिए, तो वो जो क्वेश्चन थे वो आपने किए? घर पे प्रैक्टिस की क्वेश्चंस की? यस सर। पक्का? सो एक क्विक टेस्ट हो जाए उस क्वेश्चन का, उनका। क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा ना आपको, तो मतलब मूल कॉन्सेप्ट आपका वीक है, और मूल कॉन्सेप्ट वीक है ना, तो मजा नहीं आएगा पढ़ाने में, कोई फायदा नहीं होगा फिर।
चलिए फिफ्थ का आंसर बताइए तो क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5।